Come, your awareness becomes collectively conscious. That you can feel another person on your fingertips. That means you become absolutely aware. Like I went today to Mexico. And I could feel the whole country. I knew about it before, but my attention was not so deeply there. I could feel the whole country has a very bad left side problem. And the left side problem is affecting even this area. And the left side problem, you can feel it very clearly, that your left side becomes heavy and you feel the heat in all your centers. So you start feeling the atmosphere, the country, the people, an individual, and yourself. So you know the problem of a particular place. I mean, you may not feel that much in the beginning. You may just feel yourself to begin with. Then you start feeling others. So thus the awareness grows more and more. In the central nervous system you start feeling the problems of other people, your own problems. But it is not that you feel them as something which is painful or troublesome, but you feel them as little heat or sometimes little pain, very little, as if you are recording it like a barometer. And when that happens, you want to get rid of it, as if they are your own problem. And if you know how to get rid of it, you can do it. That's what I was doing. And that's how I'm late. Something on the collective. If you are working on something, you want to finish the job, and then you want to attend to another. Don't want to leave something half done. For human beings, it is difficult in the beginning, because from human awareness you are rising to superhumanness, or you can call it to super awareness, into a subtler awareness. So first the awareness is gross, and then your awareness becomes subtler. But with that, you do not feel in any way uncomfortable or upset, because you become extremely powerful, such power of compassion that you don't feel anything, no pain, no problems. The illusions disappear completely. There's no more illusion in the mind. Like people say that when you face something, you are filled with greed or lust. But when your eyes become pure, there is no greed or lust. But what happens? That you start feeling the oneness with another thing, whatever it is, in a way that it is joy-giving. Like you see someone, an attractive person, there is no sensation.
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। आप ही करता हो, आप ही कर्ता हो। आप ही हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे, जमीन पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड अपनी गोद में ही रहेगा। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं, तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 7 बार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए, प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। सबको सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे, अपने तालु भाग पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी। बोरी मेले में सामाजिक प्रोग्राम आज पहली मर्तबा हुआ है। हालांकि शिपिंग कॉर्पोरेशन के एक बिल्डिंग में कुछ प्रोग्राम हुए थे और वहां पे लोगों ने इसका लाभ उठाया था। मैं आपको आज आपके बारे में ही कुछ बताने वाली हूँ। शायद आप लोग नहीं जानते कि परमात्मा ने आपको क्यों बनाया और कभी आप सोचते भी नहीं है कि परमात्मा ने इतनी मेहनत करके आपको इतना सुंदर क्यों बनाया, आपको मनुष्य क्यों बनाया परमात्मा ने, इस पर भी आप गौर नहीं करते हैं। क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि सोचें कि हम क्या हैं और हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा क्या कार्य है, किस लिए हमें परमात्मा ने इतनी मेहनत से इतने वर्षों तक एक छोटे से अमीबा से लेकर आज मनुष्य योनि में लाया है। इस पे हम लोग बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा चित्त बिल्कुल बाहर है, हमारा चित्त अंदर की ओर नहीं जा पाता। तो मैं आपसे कहूं कि आप लोग अपने अंदर झांकिए, अपने को देखिए, तो आप लोग नहीं देख सकते। आप कहेंगे कि माँ ये किस तरह से होता है कि हम अंदर की ओर जाएं। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, जो आप बाहर हैं आपको देख रहे हैं, लेकिन हमसे आप कहें कि अंदर की ओर जाएं तो बड़ा मुश्किल कार्य है। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने अंदर जाएं और अपने को जाने कि हम क्या चीज है। ये तो हम लोग जानते हैं क्योंकि डॉक्टरों ने हमें बताया कि हमारे अंदर में मांसपेशियां हैं और हमारे अंदर में अस्थियां हैं और हमारे ऊपर में चमड़ा लगा हुआ है। इसके अंदर अनेक मज्जा तंतु अपना कार्य करती रहती है। बहुत सी बातों के बारे में जानकारी डॉक्टर लोग सोचते हैं कि हमें हो गई है, किंतु वो ये नहीं जानते कि ये सारी क्रिया हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति करती है, कौन हमारे पेट से जो खाना है उसे हजम करती है, कौन हमें श्वासोच्छ्वास कराने पे उतारू करती है, कौन हमारे बुद्धि में रह करके विचार की चालना करती है। ये कौन सी शक्ति हमारे अंदर है, वो किस तरह से निहित है और वो कैसे कार्यान्वित होती है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पेड़ को देखते हैं तो इतना ही बता सकते हैं कि ये आम का पेड़ है, फिर ये भी बता सकते हैं कि इसमें कौन से प्रकार के आम लगते हैं, फिर ये भी बता सकते हैं कि आम का गंध कैसा है और उसका स्वाद कैसा है और यहाँ कितने बार साल में आम लगता है, किस प्रकार का ये आम होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इसकी जड़ें कैसी होती हैं, इसकी शाखाएं कैसी होती हैं। पर हम ये एक बार भी नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो शक्ति प्रवृत्त है, जो इसके अंदर से बह रही है, जिसने ये आम बनाया है, वो शक्ति किस प्रकार की।
वो किस तरह से इसमें बाहर लाती है, वो किस प्रकार इसमें फल लगाती है और वो किस प्रकार इसमें ये रस देती है। उस शक्ति के बारे में हम जानते नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये शक्ति पृथ्वी से आती है और पृथ्वी से ऊपर जाती है और कार्य करती है, लेकिन वो है क्या? हम लोग रोजमर्रा इस तरह के अनंत जीवंत क्रियाएं संसार में देखते रहते हैं। ये भी देखते हैं कि माँ के बच्चे में पेट में बच्चा रहता है और बच्चा बढ़ता है और फिर पनपता है और उसके बाद वो संसार में जन्म लेता है। कोई भी वस्तु हमारे अंदर शरीर में वो परदेसी वस्तु अंदर जाए, फॉरेन वस्तु अंदर जाए तो उसको शरीर फेंक देता है। लेकिन एक बच्चा ही ऐसी चीज है जो शरीर में जब स्थापन होता है तो उसे, जब वो शरीर में स्थापन होता है तो उसे संगोपन किया जाता है, उसको संभाला जाता है और उसकी हर एक चीज, हर एक जरूरत पूरी की जाती है। आखिर ये शक्ति कौन सी है जो हमारे अंदर इसे कार्य करती है? इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसको हम जानते नहीं, बिल्कुल अपरिचित हैं हम अपने ही से जिससे हम कार्यान्वित हैं। अगर किसी प्रकार हम इस शक्ति के ऊपर अपना काबू पा लें, इस शक्ति से हम संबंधित हो जाएं, या इस शक्ति को हम अपने हाथ में ले लें तो क्यों न हम अनेक कार्य करके दिखा सकते हैं जो कभी भी हम नहीं कर पाए। इसी शक्ति को जानने के लिए सहज योग का हमने प्रचार शुरू किया है। सहज योग अनंत काल से संसार में वर्तमान है। इस शक्ति का जितना भी कार्य है वो सहज है। सहज है, सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ। आपके साथ जो पैदा हुई शक्ति है, जो आपके अंदर हर समय स्थित है, जो आपके अंदर वर्तमान है, जो आपके अंदर कार्यान्वित है, उस शक्ति के द्वारा योग को पाना माने परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करना, यही सहज योग है। मनुष्य के अंदर ये शक्ति विशेष रूप से अदृश्य रहती है। उसे डॉक्टर लोग स्वयं चालित के नाम से जानते हैं, जिसे वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं चालित, पर ये स्वयं कौन है इसे हमने खोज के नहीं निकाला। ये स्वयं कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? सिर्फ किसी को कहने देने से कि ये प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या है, कैसे कार्य करता है, उसका तो कुछ पता नहीं होता। इस तरह से एक कुछ अजीब सा छिपा हुआ नाम दे दिया कि ये स्वयं चालित है, इसे हम नहीं जान सकते। लेकिन यही स्वयं हम लोग हैं। जिस वक्त हम ये स्वयं हो जाते हैं तब हम अपने सारे कार्यों को खुद ही कर पाते हैं। ये स्वयं ही हमारे अंदर छिपा हुआ ईश्वरी तत्व है, जिसे हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। ये आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, लेकिन आसन यहाँ पर हमारे सर पे यहाँ पर हर समय रहता है। इसके बारे में अनेक लोग भाषण देते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा को खोजो, उसको खोजना चाहिए, उसके लिए आप सर के बल खड़े हो जाओ या दौड़ लगाओ या इतनी पूजा चढ़ाओ या इतनी श्रद्धा करो, जितना तुम्हारी श्रद्धा हो उतना पैसा चढ़ाओ और दुनिया भर का इन लोगों का सरंजाम बढ़ाओ। ऐसी चीजों से आत्मा कभी नहीं मिल सकता, इससे वो खो जाएगा हमेशा के लिए। आत्मा की खोज नहीं हो सकती, आत्मा प्रकाशित होता है। जो लोग संसार में बाहर या कहीं जंगलों में रह करके संन्यास आदि ले करके द्राविडी प्राणायाम करके आत्मा की खोज करते हैं, वो बहुत गलत रास्ते पर है। आत्मा अपने ही अंदर प्रकाशित होता है, अपने ही आप सहज समाधि लीला में। जो बड़े कह गए हैं, जो आज तक यहाँ पर बहुत बड़े विचारक और जो बड़े बड़े जिनको हम गुरु कहते हैं वो कह गए हैं, उसकी एक एक बात सच, उसको सिद्ध करने का आज समय आ गया। ये वक्त आ गया है कि उस चीज को हम सिद्ध करें और देखें कि वाकई हमारे अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है भी या नहीं। और जब ये जाना जाएगा कि हमारे अंदर आत्मा है, तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं। बगैर आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकते। फिर आप मंदिरों में घूमिए या मस्जिदों में आप अपनी टांगे तोड़िए, जब तक आपकी आंख नहीं खुलती, जब तक आपकी आत्मा इसे देख नहीं पाती, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए सबसे पहला काम है आत्मा का साक्षात्कार करना। उसकी पूरी व्यवस्था हमारे अंदर परमात्मा ने कर दी है, हमें उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर हम जो यह श्वास ले रहे हैं,
उसके लिए क्या हमें मेहनत करनी पड़ती है? या जो हमारा हृदय धड़क रहा है हर मिनट, हर तरह से हमारी मदद कर रहा है, क्या उसके लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती? या हमारे पेट में जो खाने की पचन क्रिया हो रही, उसके लिए कौन सा हमें सर फोड़ना पड़ता है? अगर परमात्मा को पाना और आत्मा का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, तो वो होना ही चाहिए और होगा ही, और सहज होना पड़ेगा। लेकिन आजकल की जनता, आजकल के नौजवान अब तो परमात्मा में विश्वास नहीं करते। उसकी वजह है क्योंकि अंधे लोगों ने जिस तरह से अंधे तरीके से परमात्मा को जाना चाहा, वो समझते हैं, वो बुद्धिवादी है, वो देखते हैं कि इस तरह से परमात्मा कोई चीज नहीं है, ये तो सब धोखाधड़ी है, ये तो सब फालतू लोगों की जेबें भरने का इंतजाम है। ये बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुछ काम धाम नहीं करते हैं, उनके लिए एक अच्छा बहाना बना हुआ पैसा कमाने का एक एंटरप्राइज है। वो भी सही है, लेकिन बुद्धि से भी परमात्मा नहीं जाना जाएगा। हाँ, बुद्धि से आप उस जगह जाके पहुंच जाएंगे जहां आप ये सोचेंगे कि बुद्धि से परमात्मा नहीं जाना जाता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि को त्यागे। बुद्धि का त्याग मैं नहीं कह रही हूँ, बुद्धि पूरी की पूरी वहां बनी रहेगी, सिर्फ उसे प्रबोध होना चाहिए। ज्ञान एक चीज है और बोध दूसरी चीज है। बोध होना चाहिए। जब परमात्मा का बोध हो जाता है, वो कोई लेक्चर देने से या आपका ब्रेन साफ करने से नहीं होने वाला। एक चीज है, घटना है जो आपके अंदर घटित होनी चाहिए, आपको वो होना पड़ेगा, आपको आत्मामय होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ। इस बात से सिर्फ मैं आपको वहां तक पहुंचा रही हूँ जहां आपको खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना आपके अंदर घटित हो। अब दूसरी बात जो बहुत समझने की है कि इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसी प्रकार आप इसको खरीद नहीं सकते। मैंने इसकी सीधी बात है, ये बात कहने पे भी मुझे अजीब सा लगता है, पर बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा को खरीद सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुला के भाई चलिए पूजा कर दे, काम खत्म। हो नहीं सकता। हम लोग इतने ऐसे सतह पे रहते हैं, ऐसे उछले सतह पे रहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि इस तरह से काम करने से कहीं सत्य को पाया जाता है। सत्य को खरीदा नहीं जाता, सत्य को जाना जाता है। जैसे मैं ये बात करती हूँ तो सब तरह से लोग मेरे ऊपर डंडे लेकर के, बम्बन लोग और मुल्ला लोग चढ़े आते हैं कि हमारे पेट पर आप पैर दे रहे माता जी। लेकिन मैं उनके तो अगले जन्म की पूर्ण व्यवस्था कर रही हूँ कि अगले जन्म ऐसे और पाप कर्म करके और कहीं गंदी जगह न पैदा हो। मैं उनके लिए तो स्वर्ग की व्यवस्था कर रही हूँ कि जो इस तरह के गंदे कर्म करके और इस तरह से भगवान को बेच करके उन्होंने जो धन उपार्जन किया है, उससे कहीं वो नर्क में सीधे न चले जाए। ये बात दिखने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन ये बात कोई मैंने ही पहले नहीं कही। ये बात नानक ने कही है, कबीर ने कही है, जितने नाथ वाले हो गए सबने कही है, साई नाथ अपने यहाँ हो गए उन्होंने कही है। सिर्फ जिसको आपके पैसे में हम धीरे से आंखें खोलेंगे और श्री मां की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे। जय श्री मां।